Once again, you all are welcome in my channel. Uh, Today, we are going to start a new lecture series in artificial intelligence where we will cover all the concepts related to the artificial intelligence, ranging from its practicals as well as its theory. So without wasting time, let us start this video and we will see what we will discuss the first lecture on artificial intelligence. I hope you like this. If you like this, kindly subscribe, like, and share this video. Thank you. So let us make a little bit interactive. First of all, understand from you people what do you think artificial intelligence is. So anybody who, who want? Okay, let me ask to you. Just raise your hand if you know. You just raise your hand if you know. Okay. So Mohammed Asif, yes, I would like to ask from you. Yes, Yes, sir. Good yes. morning, What sir. is artificial? Huh. Sir, artificial intelligence is basically simulation of the human, which is processed by the machines, actually by the computers. So basically, what I have read about it, कि artificial intelligence, sir, it is performed by the machines. We have to give some data, and on the behalf of that data, it has to take some decision, like some Okay. decision making. Okay. Okay, right. Just mute yourself. Okay, let me explain first of all what is artificial intelligence to you guys. What is artificial intelligence? See, everybody listen this name very frequently because our prime minister also spoke about artificial intelligence many times in his speech. So, what artificial intelligence is? See, first of all, in artificial intelligence, it consists of two words. One is artificial, another one is intelligence. So first of all, we have to understand what is this word intelligence and from where it comes from. Intelligence is something uh, that is come through the knowledge. Like you are reading some books and getting some knowledge, and you are doing this course for getting a knowledge. And with this knowledge, you have to become an intelligent. And what is the knowledge? Knowledge you are getting through some sort of databases or information or data set, you may say. So from the databases where there is a raw information is present. So from that you extract some important information that will become your knowledge. And on the basis of your knowledge you are taking, if that knowledge is what we call, the application of that knowledge is what we call intelligence. So artificial intelligence, as the name suggests, it is nothing but application of intelligence artificially. It means through the machines. Now how it can be done? इंटेलिजेंस को आप मशीन के अंदर कैसे डाल सकते हैं, कैसे इसको आर्टिफिशियली यूज़ कर सकते हैं? सो लेट अस सी दिस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग करते क्या हैं, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसको हम एक मशीन के अंदर डाल देते हैं और मशीन जो है वो उस जो हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो मशीन वर्क करती है. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड हाउ इंटेलिजेंस विल बिकम एन आर्टिफिशियल. सो वही पर्टिकुलर अब बात आती है कि मशीन को हम जो इंटेलिजेंस देते हैं, हम जो एक्शंस करने के लिए कहते हैं, वो मशीन उसी की तरीके से एक्शन करती है. लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल. आपके घरों में आपने देखा होगा, आपके घर में एसी होता है, एयर कंडीशन है. अब एयर कंडीशन क्या करता है? एयर कंडीशन आपके रूम को कूल करता है. अब अगर आप इसको इंटेलिजेंस बना दें, एयर कंडीशन को, एक नॉर्मल एयर कंडीशन है और एक एयर कंडीशन है जो कि इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंट मीन्स हमने इसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर लगा दिया. टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा? टेम्परेचर सेंसर को हमने सेट कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस. सो एज द रूम टेम्परेचर विल बिकम 25 डिग्री सेल्सियस, यू नीड नॉट टू बी टेल टू एसी दैट यू गेट स्विच ऑफ, वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा. बट अगर एक नॉर्मल एसी है जिसके अंदर ऐसा टेम्परेचर सेंसर नहीं है, you have to be, switch on or off once you feel chill,
और जब आपको लगेगा कि ये ठंडा ज़्यादा हो गया तो आपको बंद करना पड़ेगा. So this is a normal AC and this is the smart AC that what we call. And you know, एक नॉर्मल एसी को स्मार्ट एसी में बनाने के लिए हमें एक टेम्परेचर सेंसर की ज़रूरत है, और जिसकी कॉस्ट जो होती है वो 25 पैसा या 1 रुपी, इससे ज़्यादा नहीं होती है अगर हम बल्क में बात करें. सो 25 पैसा 1 रुपीज़ में आप ये देखिए, आपने एक नॉर्मल एसी को एक स्मार्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज़ व्हाट वी कॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बेसिकली यू प्रोवाइडेड इंटेलिजेंस टू दिस एसी थ्रू दिस सेंसर. सो जैसे कि अभी आसिफ ने बताया था कि डाटाबेस हम दे देते हैं कुछ मशीन को और मशीन विल एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट. नॉट ओनली डाटाबेस, समटाइम्स व्हाट विल हैपन, सी समटाइम व्हाट विल हैपन्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सेंसर्स वी कैन मेक सम डिवाइसेस इंटेलिजेंस. लाइक हमने यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगा दिया. ये टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, इसको इंटेलिजेंस देगा, इस एसी को इंटेलिजेंस देगा. जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, आपका एयर कंडीशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. राइट. सो नोट, और जो ये डाटा की बात कर रहा था अभी मैं इसकी आसिफ के पॉइंट पे आ रहा हूँ. तो आसिफ पूछेगा कि ये सर जो मैंने बताया था कि डाटाबेस हमारे पास होता है, हम उसको दे देते हैं और वो मशीन एक्ट करती है, उस डाटाबेसेस के अकॉर्डिंगली एक्शन लेती है. इज इट नॉट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यस, दिस इज आल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हाउ? आई विल टेल यू. सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला के अंदर आता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. हम मान के चल, देखिए ये अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक अम्ब्रेला, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं आज की डेट में, लाइक मशीन लर्निंग, योर डीप लर्निंग, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, न्यूरल नेटवर्क्स, मैनी, सो मैनी. नाउ मशीन लर्निंग, पीपल आर कंफ्यूज्ड whether machine learning is artificial intelligence. Yes, artificial intelligence is a big umbrella under which all these things are coming. Machine learning, deep learning. So you may say artificial intelligence is a big set, is a superset, and machine learning is a part of its. It is like a subset of artificial intelligence, and machine learning का भी एक सबसेट होता है जिसको हम deep learning कहते हैं, DL. अब आप कहेंगे सर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस बताइए. देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम सबको ही कहते हैं, मशीन लर्निंग को भी और डीप लर्निंग को भी. मशीन लर्निंग जैसे आसिफ ने बताया था कि जो डाटा पे काम करती है, हमारे पास वी हैव सर्टेन डाटा सेट्स, ऑन दैट डाटा सेट्स योर मशीन, वी प्रोवाइड दैट डाटा सेट टू द मशीन. आपने डाटा सेट मशीन को दे दिया. अब वो डाटा सेट कैसे, मैं आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग. लेट अस सपोज आपके पास एक डाटा है कि भाई 200 स्क्वायर, एक हाउस होल्ड डाटा है, हाउस का डाटा है कि हाउस का एरिया अगर 200 स्क्वायर फीट है तो उसका प्राइस सपोज करो 20 लाख है. ये उसका प्राइस और उसका एरिया का डाटा है. आल्दो खाली एरिया और प्राइस पे नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ें और भी फैक्टर्स होते हैं जिसपे प्राइस ऑफ होम डिपेंड करता है. बट लेट अस सपोज कि खाली वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है प्राइस. सो एरिया अगर 200 मीटर स्क्वायर है तो उसका 20 लाख प्राइस है. अगर 400 है तो वो बढ़ गया, सपोज करो 30 लाख हो गया. सो दिस हाउ वी हैव अ डाटा सेट. अब कुछ टाइम के बाद अगर सपोज करो राहुल तनवर पूछेगा सर अब इसने मशीन बना दी है, अब राहुल तनवर उसमें अगर डालेगा ना कि 1000 स्क्वायर फीट का रेट क्या होगा, तो वो मशीन झट से बता देगी, क्योंकि वो मशीन जो है वो एक रिलेशन डेवलप कर लेगी इस डाटा के अकॉर्डिंगली. और जब कभी तुम अपना फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन उससे पूछोगे तो वो तुम्हें उसका आंसर निकाल के दे देगी. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मशीन लर्निंग, जिसके अंदर हम डाटा डाल देते हैं और डाटा के थ्रू हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं. अब आप कहोगे सर व्हाट इज डीप लर्निंग. एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो हमारे पास खाली 2 ही सेट्स हैं, एक एरिया और एक प्राइस. बट देयर में बी मोर फीचर्स आल्सो, लाइक उसकी एम्यूनिटी कैसी है, उसका जैसे मार्केट उसके पास है, घर के पास है, वो नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी प्राइस चेंज हो जाता है. तो बहुत सारे पैरामीटर्स को जब हमें एक साथ लेते हुए एरिया को कैलकुलेट, प्राइस को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ऐसी सिचुएशन में हमें एक इस तरीके से काम करना होता है जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है. आपको पता है ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है? ह्यूमन ब्रेन सीरीज में काम करता है. मतलब वो पहले परसीव करता है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करता है, फिर उसके ऊपर और डीप एनालिसिस करता है, फिर एट द एंड बताता है रिजल्ट न्यूरल नेटवर्क के थ्रू कि क्या मुझे चाहिए. जैसे आप भी कभी कोई चीज़ लेने जाते हो, पर्टिकुलरली गर्ल्स जो इस ग्रुप में है, जब वो मार्केट जाती है कोई भी शॉपिंग करने के लिए, 10 तरीके की चीज़ें वो खुलवा देती हैं. और ऐसा नहीं है कि वो 10 चीज़ें जो उन्होंने पहले 9 खुलवाई हैं वो रिजेक्ट कर देती हैं. 100 खुलवाने के बाद दोबारा वो फर्स्ट ही लेती हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं. मतलब अलग अलग फिल्टर चल रहे होते हैं कि प्राइस भी देखना है, कलर भी देखना है, सब कुछ देखना है, उन्होंने हर चीज़ देखनी है.
So this is what we call, this section is, we can say it is a example of deep learning, where आपको कई features को analysis करना है. So deep learning is also comes under, artificial intelligence, and it is a subset of machine learning. सबसे पहले तो हम मशीन लर्निंग के थ्रू ही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास ज़्यादा फीचर्स हैं कि वो एक मशीन हैंडल नहीं कर पा रही है, या उसका कंपटीशन टाइम ज़्यादा लग रहा है, प्राइस ज़्यादा उसके ऊपर हमारा कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो हम डीप लर्निंग की तरफ जाते हैं. डीप लर्निंग में हम क्या करते हैं, इसी डाटा सेट को, ये सपोज करो ये डाटा सेट, ये डाटा सेट हमारे पास 100 मिलियन था, अब मेरे पास डाटा सेट आ गया 1000 मिलियन. तो 1000 मिलियन डाटा सेट में मैं क्या करूँगा, डीप लर्निंग करते वक्त इस पूरे डाटा सेट को सब डिवाइडेड कर लूँगा, 100 के 10 बना लूँगा. तो 100 के 10 डाटा सेट को इंडिविजुअली प्रोसेस करूँगा, मतलब मैं एक मशीन ना बना करके, ऐसे मेरे पास 10 इसको सब डिवाइडेड टास्क को सब डिवाइडेड करके मैं उसको 10 तरीके से एनालिसिस करूँगा. तो उस ऐसे प्रोसीजर को हम कहते हैं डीप लर्निंग. एंड वी हैव सेवरल machine learning algorithms, programming. The same algorithms you can apply in deep learning. The only difference is in deep learning you have to break your data set into smaller modules so that the processing speed get increase. Although जो भी चीज़ आप डीप लर्निंग से करना चाहते हो वो चीज़ मशीन लर्निंग से हो सकती है. The only drawback here is in machine learning the machine gets slow, and to increase its speed we will move towards the deep learning. We use this deep learning. Anyhow, so I think I explained this machine learning, deep learning. और आपको ये जरूर पता होना चाहिए, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने मशीन लर्निंग आती है तो आप कहेंगे हाँ आती है, और मैं कहूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है और आप कहेंगे नहीं आता है, then it is wrong, because machine learning it comes under the umbrella of AI. But if anybody asks you what is the difference between DL, ML and AI, so you have to say AI is the superset of ML, and it is and DL comes under the subset of ML. So this is a difference between AI, ML and DL. So write down one question, you all. I am giving you questions. In the meantime, you just have to prepare the assignment at the end and submit it. So just write down one question. What is the difference between AI, ML and DL? So till this time, anybody have any question can raise your hand, please. If anybody have any question regarding what is the difference between these three? Yes, Mohammed, please. Sir, data is split in ML or DL? Pardon, what you are saying? सर हम सेइंग जो डेटा आपने बताया कि डेटा सेट्स को स्प्लिट करना पड़ता है, तो सब मशीन लर्निंग में होता है या डीएल में होता है? नहीं, देखिए मशीन लर्निंग में क्या है, मशीन लर्निंग में जो आपके पास डाटा सेट है वो 100 मिलियन है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाया, 100 मिलियन डाटा है आपके पास. देखिए एकदम से डाटा सपोज करो आपके पास 1000 मिलियन हो गया, तो उस टाइम क्या होगा, ये मशीन जो है ना स्लो हो जाएगी. तो हमें क्या करना होगा, हमें डीप लर्निंग की तरफ जाना होगा. डीप लर्निंग में क्या करते हैं, हम इस 1000 मिलियन डाटा सेट को ब्रेक कर देते हैं. 100 मिलियन के सपोज 10 हमने सेट्स बना लिए, और उसको फिर इंडिविजुअली लेयर वाइज प्रोसेस करते हैं, और एट द एंड रिजल्ट को कंबाइन कर देते हैं. दिस इज जस्ट लाइक अ पैरेलल प्रोसेसिंग दैट यू आर डूइंग इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर आल्सो. इट इज जस्ट लाइक दैट. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग, दैट इन डीप लर्निंग we process data in a layers by because the data is too huge, it is just like a big data, so we have to go for this deep learning. Is it okay? Yes sir. Okay, thank you. Okay, anybody any other question? Please feel free to ask me. यार ये बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है. यस निश्चल प्लीज. यस सर. सर जैसे अभी आपने बिग डेटा का बताया कि दैट बिग डेटा में जैसे डीप लर्निंग में भी वी हैव 100 मिलियंस ऑफ डेटा, एंड बिग डेटा में भी बहुत ज्यादा होता है. सो व्हाट वी एक्चुअली यूज ओवर देयर, डू वी यूज एमएल और वी गो फॉर डीप लर्निंग? आई एम टेलिंग यू सी what is big data. See, there is no clear cut boundary. If I am saying 100 million, you can't say it is a big data. Big data is what I will just explain this also to you.
Actually, I want to arrange one lecture in which I will tell you in the next lecture itself. I will tell you what are the different technologies which are available in the market, so that you never get confused among them. What is big data? How it is different from AI? So आपका क्वेश्चन का मैं आंसर यहाँ पे देता हूँ. देखिए, बिग डाटा Okay, क्या sir. है? बिग डाटा क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ. देखिए, बिग डाटा क्या है आपको पता है. हम सब बच्चे, मैं भी इंक्लूडिंग उसी बच्चों में, हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं, और करते क्या है, कोई भी पोस्ट उठा के डाल दी, कोई फोटो डाल दी, कोई म्यूजिक डाल दिया, किसी ने वीडियो डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया. ये सारा डाटा जो है ना, व्हेन वी क्लब ऑल दिस थिंग्स, दिस विल बिकम अ बिग डाटा. बिग डाटा मीन्स एवरीथिंग जो भी आप डाली जा रहे हो वो बिग डाटा है. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने कि हमारे पास इतना सारा ह्यूज डाटा है मार्केट में इस टाइम. पहले नहीं थी ये प्रॉब्लम, क्योंकि पहले इक्का दुक्का कोई बंदा फेसबुक यूज़ करता था, व्हाट्सएप यूज़ करता था. आज की डेट में ये समझ लो कि एवरीबडी, सब्जी वाले से लेकर के एरोप्लेन चलाने वाले तक, एवरीबडी दे आर यूजिंग डाटा. सो वो डाटा जो है ना वो क्या हो रहा है, वो इन द फॉर्म ऑफ ये समझ रहे हो, ये ऐसे एक रैप्चर्ड एक डाटा सेट बनता जा Yes, रहा है. sir. दिस इज व्हाट वी कॉल बिग डाटा. नाउ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या चाहिए. बिग डाटा एक सेपरेट सब्जेक्ट है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, मशीन लर्निंग से या डीप लर्निंग से कुछ लेना देना नहीं है. अब हम क्या करते हैं, इस बिग डाटा को बेसिकली, हम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि ये जो मिक्सचर है ये अपना अलग अलग हो जाए. कहने का मतलब MP3 फाइल्स अलग हो जाए, JPG अलग हो जाए, सारी फाइल्स अलग अलग हो जाएं. तो इसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है, जो एक टूल है जिसके थ्रू हम करते हैं, उसे कहते हैं हडूप. आपने सुना होगा हडूप. हडूप इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ फिल्टर. इट्स अ काइंड ऑफ फिल्टर जो कि इस बिग डाटा को सेपरेट करने के काम आता है. ये अलग अलग क्लासिफिकेशन कर देता है डाटा की. अब जो ये डाटा बना है ना, इस डाटा को यू कैन यूज एज ए यूज इनसाइड योर दिस मशीन लर्निंग फॉर एनालिसिस. लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने देखा होगा इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, इंश्योरेंस क्लेम कैसे करती हैं. अब इंश्योरेंस क्लेम कैसे होता था, कंसल्टेंट जाता था, आपका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, वो जाके देखता है आपकी गाड़ी में कहाँ कहाँ पे चोट लगी है, क्या क्या हुआ है, तो उसके हिसाब से बताता है कि भाई आपको इतना क्लेम मिलेगा, क्लेम सेटल करने के लिए. अब उसके अंदर क्या होता है, इसमें बेईमानी होने के चांसेस हैं. आप उसको पैसे खिला सकते हो, यार थोड़ा सा और तोड़ देता हूँ, मेरे को क्लेम दिला दे. तो कंपनीज सिमिलरली फॉर अमेजोन, लोग क्या करते हैं, अमेजोन से सामान मंगाते हैं, 15 दिन यूज़ करते हैं, 14वें दिन रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी पॉलिसी है कि तुम 15 दिन तक उसको यूज़ करके वापस कर सकते हो. तो दीज कंपनीज दे आर फ्रस्ट्रेटेड कि यार अब क्या करें, इसका क्या सोल्यूशन है, इसको क्या कैसे इसको हैंडल करें, जेन्युइन बायर कौन है हमारा. तो उसके लिए हमने ये मशीन लर्निंग और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका एक एप्लीकेशन हो सकती है. कैसे हो सकती है, अभी आज की डेट में हमने देखा होगा एक क्रेडिट स्कोर मिलता है लोगों को. जो लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसको एक स्कोर देते हैं, और अगर वो रिटर्न करता है, वो आदमी रिटर्न करता है, तो उसके हिसाब से वो क्रेडिट स्कोर जो है उसका कम ज़्यादा होता रहता है. सो बाय एनालिसिस दैट वन कैन predict whether that is an application of ML, and I will discuss it in detail later on, right? Okay, निश्चय. Okay, can we? Yes, sir. Can I proceed? Okay, मैं अभी आगे चल रहा हूँ निश्चल. Yes, sir. मैं इस लेक्चर को पहले फिनिश करना चाह रहा हूँ. Let me come to the lectures again. See, Okay, sir. what do you think artificial intelligence is? That I already explained. See, artificial intelligence in the movies. In a movies, robots are able to talk, think, have an emotion, and make decisions just like an human. मूवीज में तो ऐसे दिखाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक रोबोट है जो कि अपने आप बात कर सकता है, उसकी इमोशंस होती हैं, डिसीजंस हैं, डिसीजन ले सकता है जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग. बट आज की डेट में भी मैं आपको बता दूं, वी आर नॉट एबल टू क्रिएट सच काइंड ऑफ रोबोट्स दोज हैविंग द इमोशंस. ऑल्दो सोफिया एंड सिरी दे सेड कि हमने बना दिया है, बट स्टिल we are lacking in that, or we are continuously working in this field in making robots. Next is, what is artificial intelligence? Artificial intelligence is the development of computer system. This is the exact definition. Artificial intelligence is the development of computer systems that are able to perform tasks that would require human intelligence. Like example of these tasks are visual perception, speech recognition, decision making, and translation between the languages. These are the some examples of artificial intelligence. So
Real lifetime artificial intelligence examples are self-driving cars. This may be asked you in the exam. Give some examples of artificial intelligence. So self-driving car, still we are working into on self-driving car. Still we are not able to design it accurately, but हमने काफ़ी हद तक बना लिया, लेकिन फिर भी अभी भी इस पे काम चल रहा है. Boston Dynamics navigation system, ASIMO. ASIMO is the first robot, you know. ASIMO, you can Google it. What is ASIMO? ASIMO is the first robot that is designed. Chatbox, yes, Chatbox is a real-time application of AI. Human versus computer games and many more. You know, आज की डेट में जो वेबसाइट डिज़ाइनर है, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो वेबसाइट की फील्ड में वेबसाइट डिज़ाइन करते होंगे. मार्केट के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो दे वांट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट. What it means? Artificial intelligence means they want your website, you know, operated automatically. You need any person or admin to operate it. Like कोई बंदा आपसे क्वेरी कर रहा है, तो वो वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, वेबसाइट आपका ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्स करे. तो फॉर दैट वी ऐड चैट बॉक्स लाइक दिस. चैट बॉक्स को हम ऐड कर देते हैं उसके अंदर, और उसको, और नॉट ओनली दिस दैट वो जो वेबसाइट हम बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, दैट नॉट ओनली रिस्पॉन्ड बट आल्सो उसका SEO SMO ये भी वो खुद ही करती है. अगर उसको कोई ऐसे की, और आपने देखा होगा आज की डेट में जो आप वेबसाइट जैसे अमेज़ॉन पे जाते हो कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और आप प्रोडक्ट को गेज करते हो और छोड़ देते हो थोड़ी देर के बाद, फिर वहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू होता है. वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को टैप करते हैं. आप जहाँ जहाँ जा रहे हो, आप फेसबुक पे जा रहे हो, आप जहाँ भी जा रहे हो, वो लिंक्स आपको दिखाना शुरू कर देते हैं बार बार. वो आपको मोटिवेट कर देते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए, कि आप उसकी, मतलब ये दिस इज व्हाट वी कॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग. तो वो कैसे होता है, क्या होता है, वो भी अब लेटेस्ट इन द कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Artificial intelligence is categorized into two parts. One is weak artificial intelligence and one is strong artificial intelligence. ये पेपर में अभी आता है, आपसे पूछा जा सकता है. देखिए, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होता है, जैसे सपोज करो मेरे पास एक मशीन है, ये मशीन आपको दिख रही है पीछे. हमने इस मशीन को कह दिया कि भाई तू गड्ढा खोद, तो ये मशीन गड्ढा खोदती जा रही है, बस खोदती जा रही है. हमने इसको और कुछ नहीं बोला कि तूने कहाँ स्टॉप होना है, क्या करना है. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वीक AI. जैसे सपोज करो तुमने घर में अपना रोबोट बनाया, रोबोट के अंदर तुमने बस आगे फॉरवर्ड की डायरेक्शन दे दी, तो वो रोबोट फॉरवर्ड ही चलता रहेगा, उसको बैकवर्ड के बारे में पता ही नहीं है. तो जिसके अंदर सिंगल इंस्ट्रक्शन हो, जो इंस्ट्रक्शन दे दी और अपना अप्लाई नहीं कर रहा माइंड, बस वो खोदता जा रहा है, चलता जा रहा है. दिस इज व्हाट वी कॉल वीक AI. अगर मैं इसको पढ़ूँ इस स्टेटमेंट को, मशीन्स विद वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर मेड टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन बट कैन नॉट थिंक फॉर देमसेल्फ. वो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं सोचेगी, वो वही काम करेगी जो इंस्ट्रक्शन आपने उसको दे दी. एक होता है जी स्ट्रॉन्ग AI. स्ट्रॉन्ग AI में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग AI में मशीन के पास भी कैपेबिलिटी होती है एक्शन को लेने की. फॉर एग्जांपल, आपने मशीन को बोल दिया गड्ढा खोद, तो मशीन गड्ढा खोदना शुरू करेगी, लेकिन ऑटोमेटिकली जब वो गड्ढा इतना गहरा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, किसी एक सर्टेन डेप्थ पे जाकर रुक जाएगी कि भाई इससे आगे डेंजरस हो सकता है. तो वो आपसे पूछेगी क्या मुझे फर्दर खोदना है. तो ऐसी मशीन को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग AI. अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ, a machine with strong AI is able to think and act just like a human. It is able to learn from experiences. ये अपने experiences से सीखती है और अपने आप को और intelligent बनाती रहती है. This is what we call machine learning also. तो strong AI is a concept of machine learning, and weak AI is a simple artificial intelligence, sensor based artificial intelligence. वो sensor sense करेगा तभी वो रुकेगा, अदरवाइज वो काम करता रहेगा, जो आपने इंस्ट्रक्शन दे दी बस उस इंस्ट्रक्शन तक वो काम चलता रहेगा. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड. सो राइट डाउन द क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग AI एंड वीक AI? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग AI एंड वीक AI? I think it is clear to all. Let me ask with somebody. Vanshika Rai. Yes, beta. Are you able to understand? Yes, sir. Yes, What sir. is the? Just please explain once again. What is the difference between weak AI and strong AI? The weak AI, basically they are just made to respond to specific situation and they can't think of themselves.
लाइक जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर हमने गड्ढा खोदने के लिए बोला तो वो खोदते जाएगा, दे डोंट इवन कांट थिंक. But Right. strong AI is basically the machine that is able to think of themselves and act just like a human. It's able to learn about, like the human qualities. राइट अगर राइट राइट राइट, वेरी गुड ग्रेट. सो अभी आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज द, ओके आप अपने आप को म्यूट कर लो. राइट, सो आपको ये समझ में आ गया बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एआई एंड वीक एआई. आई थिंक रैंडमली क्वेश्चन पूछने से समझ में आ जाता है कि बच्चों को कुछ आ रहा है. सो आई मूव फॉरवर्ड नाउ. And don't worry, this class is of 45 minutes or 40 minutes only. I will give you some time, 10 minutes at least, so that you are able to join another class. So be careful. I am moving forward. This is AI, weak AI. Now next one is this we covered. Yes, machine learning, an application of artificial intelligence. See, the first line itself describes machine learning, although I covered it. An application of artificial intelligence that gives machines the ability to learn and improve. This is very important. Improve means, see, मशीन क्या कर रही है इसको जरा यहाँ पे समझते हैं. देखिए मशीन क्या कर रही है आपकी, यस देखिए मशीन के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास मशीन है. मशीन क्या क्या अंदर क्या होता है, हमने यहाँ पे डाटा दे दिया, यहाँ पे बीच में डाटा है. डाटा देने के बाद ये मशीन बन गई. आपने कुछ इनपुट दिया, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था, राहुल तनवर ने पूछा 1000 स्क्वायर मीटर का क्या प्राइस होगा. तो राहुल तनवर ने यहाँ पे ये इनपुट दिया 1000 स्क्वायर मीटर का डाटा का क्या रिजल्ट होगा. तो इसने मशीन ने अपने कैलकुलेशन करके यहाँ से रिजल्ट दे दिया, जी इसका प्राइस होगा सपोज 1 मिलियन प्राइस होगा इसका. ठीक है जी. अब क्या होगा, ये जो डाटा है, जो ये रिजल्ट आया, मतलब जो हमने रियल टाइम इससे क्वेश्चन पूछा और जो आंसर आया, वो वापस फीडबैक हो जाता है इस डाटा सेट के अंदर. इस तरीके से मशीन जो है वो अपने एक्सपीरियंस से सीख रही है. ये मशीन जो है ये डाटा सेट बढ़ता जा रहा है, तो डाटा सेट बढ़ने की वजह से ये मशीन का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है. मशीन का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है कि ये जो डाटा मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जैसे ये मशीन जो है ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या होता है, डाटा जो रिजल्ट होता है वो आपका यहाँ पे मशीन के अंदर एक्सपीरियंस के तौर पर इसके अंदर ऐड होता रहता है, और ये मशीन जो है मोर इंटेलिजेंट होती रहती है. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ. लेट अस मूव फॉरवर्ड. मशीन लर्निंग वी ऑलरेडी कवर्ड. नेक्स्ट वन इज ट्यूरिंग टेस्ट. आई थिंक यू ऑल heard about the name Turing. राहुल, आपने कभी इसका नाम सुना है, ट्यूरिंग? यस सर, नाम सुना है. ओके, मैं आपको बताता हूँ क्या था ये ट्यूरिंग क्या था. देखिए ट्यूरिंग को ना सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना जाता है. 1950 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, यू नो, एंड ही इज द वन हु क्रिएटेड इट, द फर्स्ट मैन. 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन तैयार करी थी. वो मशीन क्या थी, एक तरह का ब्लैक बॉक्स था. जब उस ब्लैक बॉक्स के बाहर खड़े होकर, एक रूम के बाहर खड़े होकर के आप उससे पूछते हो हेलो हाउ आर यू, तो आगे से रिस्पॉन्ड आता है यस आई एम फाइन. तो लेकिन उस टाइम 1950 में आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट तो 1950 से हुआ था, और हमें लग रहा है कि अभी 2020 में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया. आई एम टेलिंग यू हाउ, व्हाई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1950 में शुरू हुआ था, लेकिन वहां पे इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाई थी, क्योंकि एट दैट टाइम वी आर लैकिंग इन 2 फील्ड्स. वन इज प्रोसेसर्स. हमारे पास डेडिकेटेड प्रोसेसर्स नहीं थे जो कि हाईली कंपटीशन ये जो इसको हाईली कंप्यूट कर पाएँ ये इंस्ट्रक्शंस को. तो प्रोसेसर तो थे ही नहीं हमारे पास, लेकिन आइडिया आ गया था कि हमें करना है. दूसरा, हमारे पास डाटा सेट नहीं था. हमारे पास डाटा ही नहीं था. क्यों? लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, कहीं डाटा था ही नहीं, और हम मैनुअली कितना डाटा क्रिएट कर सकते हैं. तो ये प्रॉब्लम थी 1950s में. फिर जैसे ही इंटरनेट आ गया 2000 में, तो एक रेवोल्यूशन आ गया, और मोबाइल आ गया, तो एक रेवोल्यूशन आ गया. मोबाइल और इंटरनेट की वजह से हमारे पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा होने लग गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो और ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया. 2010 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हो गया. क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन्स आ गए जिसके अंदर सबके अंदर इंटरनेट था, और इंटरनेट से हमारे पास डाटा की कोई कमी नहीं रही, और
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बार फिर बूमिंग के तौर पे एक न्यू टेक्नोलॉजी के तौर पे वापस आया। तो अर्लियर ध्यान रखिएगा, इन 1950s इट इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग सिंस 1950। एंड एलन ट्यूरिंग का नाम याद रखिएगा, एलन ट्यूरिंग वाज द फर्स्ट। ये आपके एंट्रेंस में कहीं पे आएगा, अगर आप कोई नेट वेट का एग्जाम देंगे तो हु मेड दिस, तो इसके बारे में पढ़िएगा। लेकिन ये फेलियर था, दिस इज कंट्रोवर्सी टू ट्यूरिंग टेस्ट, बिकॉज सम पीपल डिसएग्री कि ट्यूरिंग कैसे काम करेगा, ये जो आपकी मशीन है कैसे काम करेगी, क्योंकि डाटा सेट था ही नहीं हमारे पास। तो इसको फेलियर, उस टाइम इसको फेलियर, दिस इज अ कंट्रोवर्सी टू ट्यूरिंग टेस्ट दैट आई एक्सप्लेन्ड। नाउ द मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, future of AI. See, what we expect in the near future, the military bots, आपको पता है during the war what will happen, there is lot of destructions, you know, human beings, काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मिलिट्री बॉट्स बनाए जा रहे हैं, which is the nearly application of future AI. And another one is the perfect lawyer. लॉयर, यू नो, समटाइम्स व्हाट विल हैपन, लॉयर क्या करता है, पैसा लेकर के वो किसी को भी जिता, मतलब हिंदुस्तान में तो खासकर ऐसा है कि किसी को भी आपको बचाना है तो आप लॉयर आपके पास अच्छा है तो आप बचा लोगे, चाहे उसने मर्डर किया हो। तो द परफेक्ट लॉयर इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर एआई, मीन्स वो लॉयर जो है वो जेन्युइनली केसेस को स्टडी करेगा, जो भी आपने फैक्ट्स उसको दोगे उसके बेसिस पे आपकी सजा को तय करेगा, मतलब वो आपको बचाएगा या जो भी करेगा, वो परफेक्ट लॉयर। It is also one of the application of AI, और आप लोग इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। I will tell you how. Music, those who are singer और जो म्यूजिक पसंद करते हैं, जो म्यूजिक लवर हैं, उनके लिए they can, you know, regenerate beats, और किसी तरीके से आपके अपने मूड के स्विंग पे आप म्यूजिक को डेवलप कर सकते हैं। This is also one of the application of future of AI. Businesses I told you, अब वो वाला जो this is one of the area where you all can, I advise you all to, you know, just started working on digital marketing. You know, in coming years only the digital marketing things is existing, no physical marketing will, you know, people do not prefer physical marketing, they want, you know, everything। अभी आपने ये 3-4 महीने में एक्सपीरियंस कर लिया होगा कोविड में, everyone, you know, they are interested to purchase the things through online. So for business this is a very, and how AI is associated with this, let us suppose राहुल किसी प्रोडक्ट को देखता है, बस देखता है, किसी इंटरेस्ट से उस प्रोडक्ट को देख रहा है और इसको बंद कर रहा है, तो वो जो अब बाकी काम मशीन का है कि राहुल के मूड को स्विंग करना और उसको ये प्रोडक्ट को बेचना। So this is how the AI is। And also in businesses, जैसे कि लोग पहले कॉल सेंटर्स बनाते थे, फिजिकली बंदे बिठाते थे, वो लोग कॉल करते थे या नहीं करते थे, आजकल सब AI हो गया। जस्ट यू हैव टू फीड द नंबर्स, ऑटोमेटिकली ऑटो कॉलर्स वो लगा देते हैं, टाइमिंग सेट कर देते हैं तो कॉल्स ऑटोमेटिकली आती हैं। दिस इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ AI। हेल्थ केयर सेक्टर में आपने देखा होगा, हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो अमेरिका में बैठे हैं या किसी दूसरी कंट्री में बैठे हैं, एंड वी नीड देयर हेल्प इन this country, in India, let us suppose. So with the use of VR and AR, you know, virtual reality and augmented reality, that also comes under the umbrella of AI. उसकी मदद से आप हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। दिस इज आल्सो अ फ्यूचर ऑफ AI। तो दीज आर द स्पेसिफिक एरियाज वेयर वी कैन यूज द AI। एंड this slides is related to the benefits of AI. The most important purpose of AI is to reduce human casualties that I already explained, like in wars, car accidents, natural disasters. So these are the benefits of AI. Sir, Yes. so this side Vanshika sir, I have a question. Sir, Yes, please. You told us कि the future of AI is military bots, the perfect lawyer, music, business and healthcare. So basically, there is a point कि employment तो कम हो जाएगा, मतलब like employment for people like जो military में जा रहे हैं, let's not take it as like benefits है, but there are think कि employment actually कम हो जाएगा, and there are people like other people who are not interested in studying AI, not interested in computer science, so it might be one of the disadvantage for humans.
Yes, Vanshika, I understand your question. I'll explain this thing. See, I always told to my students that the job in the job market right now or in the future also, it is not through to it is not linked with your degree. It is linked with your skill. सो जितने ज़्यादा आप स्किलफुल हो गए, आपने बोला कि जब सब चीज़ ओवरटेक कर लेगी मशीन्स, तो इंसान के पास जॉब्स नहीं होंगी। ऐसा नहीं है। जो मशीन्स हैं उनको हमें एक हाई डिग्री क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होगी, एक हाई डिग्री स्किल की ज़रूरत होगी जो कि उस मशीन्स को ऑपरेट करेंगे। मशीन्स चलेगी ऑटोमेटिकली, बट उसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट डालना, उसके लिए आपके जैसे इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी जो कि उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स को बढ़ाएंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर एरियाज। डेफिनेटली देयर इज़ अ शिफ्ट। आज की डेट में जैसे आप लोगों को डाटा एंट्री की जॉब मिल जाती थी या कहीं कुछ ऐसे उटपटांग जो छोटी मोटी जॉब्स मिल जाती थी, वो ख़त्म हो जाएंगी। बट ऑन द अदर हैंड हाई स्किल्ड जॉब्स जो हैं वो मार्केट के अंदर आएंगी, जिसके अंदर आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। आज की डेट में क्या होता है, आप एमसीए कर लोगे, अभी आपको कॉल सेंटर में बिठा देंगे या कहेंगे जी ये डिजिटल मार्केटिंग करो या कहेंगे हमारी ये वेबसाइट्स बनाओ, ये काम है। लेकिन आप देखो ग्रेजुअली जब ये सब चीज़ें एआई ओवरटेक कर लेगा, तो ऑब्वियसली देयर आर सम न्यू सेक्टर्स विल कम वेयर देयर इज अ एम्प्लॉयबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड। ऐसे नहीं है कि सब चीज़ें मशीन कर लेंगी तो मशीन ही सब कुछ करेंगी, तो इंसान क्या करेगा, ऐसा नहीं है। ओके वंशिका, whether I am able to give you answer or not? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay, right. So these are the बस हम इस लास्ट स्लाइड को ओवर कर रहे हैं। सी, और these are the benefits of AI, and this is all about my first lecture, and now I am showing you, I am just taking. सर आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक यू सेड कि जो मशीन लर्निंग है वो और एआई जब हम साथ में मिलते हैं तो एक अच्छा परफेक्ट डिसीजन मेकिंग हो जाता है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट दी याशी, I just first of all clear yourself. मशीन लर्निंग एआई से नहीं मिलता, मशीन लर्निंग है ही एआई बेसिकली। नाउ प्लीज आस्क। ओके सर। बट जब हम बात करेंगे सेल्फ कार ड्राइविंग की, सो वी विल गिव सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस कि आपको रुकना है, अब नहीं रुकना, बट जब एक्सीडेंट प्रॉन का सीन आएगा तब कैसे वो डिसीजन करेगा? तब उसको कब बोलेंगे कि गाड़ी अब रुकनी है या नहीं रुकनी है? इट विल हिट अप। सुनो याशी, सुनो। सेल्फ ड्राइविंग कार, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ ड्राइविंग कार में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देनी ही नहीं है। सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर गूगल मैप होता है। मतलब वो इतने एक्यूरेट होने चाहिए सेंसर्स, गूगल मैप, कि वो कार जो है वो ऑटोमेटिकली, सेंसर इतने एक्यूरेट होंगे कि उसके आगे अगर कोई कार आएगी तो ऑटोमेटिकली ब्रेक मार लेगी, वो हिट करने ही नहीं देगी। इट इज़ सो एक्यूरेट बट आज की डेट में अब तुम कहो कि मैं दिल्ली में ये वाली कार लेकर आऊँ, तो दिल्ली में तो इतने गड्ढे हैं, वो गड्ढे ही नहीं बचा पाएगी हमारी कार, कहीं ना कहीं फंस जाएगी। तो इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर जो है ना, ये फिजिकल चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है। लेकिन फॉरेन कंट्री के अंदर देखो, वहाँ पे रोड्स बिल्कुल स्मूथ होती हैं, देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्टेबल, कहीं पर भी कोई गड्ढे ना कुछ ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे भी गूगल अभी भी ट्राई कर रहा है। आपको पता है 2000 से लगा हुआ है गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार, आज की डेट में भी वो सेल्फ ड्राइविंग कार जो है परफेक्ट नहीं बना पाया। कारण क्या है? क्योंकि अभी भी कोई भी बंदा ह्यूमन लाइफ के साथ नहीं खेलना चाहता, ठीक है? तो डेट्स वाई अभी भी इसके ऊपर और एक्यूरेसी कर रहे हैं, गूगल मैप को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, आने वाले टाइम में वी मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ कार्स, राइट? ओके सर, थैंक यू सर। ओके निश्चल। सर मेरा यही वाला क्वेश्चन है सेल्फ ड्राइविंग कार पे ही थोड़ा आगे। सर जैसे मान लो सेल्फ ड्राइविंग कार चल रही है और आगे देयर आर टू बाइकर्स एंड दे कोलाइड, तो सर होता है ना कभी कभी एक्सीडेंट होते होते कोई किसी और में लग जाता है, तो सर सपोज करो सर वो बाइकर कोलाइड होकर स्लाइड होते होते एआई वाली कार को लग गया, तो सर वो तो फिर लग गया ना। देखो एक बात सुनो, हिंदुस्तान के अंदर मैं पहले बात कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर देखो दो चीजें हैं। इंडिया में हम ना कार चलाते नहीं है, हम कार बचाते हैं। पहली बात, हम रोड पे जब चला रहे होते हैं ना, क्योंकि तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो मान लिया, लेकिन सामने वाला इनएक्सपीरियंस्ड है भाई, तो तुम तो अपनी कार को बचा रहे हो, इंडिया के अंदर तुम कार चला नहीं रहे हो। अब नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन
तुम कह रहे हो बाइकर वाला, अब देखो ये तो एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, तेरी गाड़ी चल रही है, ऊपर से पत्थर उड़ करके आगे लग गया, तो उसमें गाड़ी क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती, उसमें तेरी गाड़ी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, इस केस में कर पाएगी। जैसे सपोज, पहली बात तो ये, सेल्फ ड्राइविंग कार कभी ऐसे इतनी तेज स्पीड से चलेगी नहीं कि 250 की स्पीड पे चल रही है, 200 की स्पीड पे चल रही है, वो बड़ी नॉर्मल स्पीड पे चल रही होगी। दूसरी बात, अगर कोई बाइकर ऑटोमेटिकली या कोई भी चीज आकर के उसको हिट कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली बेटे अपने आप को जितना सेव कर सकेगी ना, करेगी। हम उसके अंदर जितने फीचर्स डालेंगे, जैसे हमने बेसिकली ये सारा सेंसर्स का खेल होता है, आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा वो कैसे करते हैं, और सेंसर्स क्या होते हैं एक बार आपको बताऊंगा, और सेंसर कैसे डिजाइन होते हैं ये भी बताऊंगा। मीट अगेन टुमारो 12 o'clock, and I'll tell you in tomorrow lectures I will tell you what are the various technologies in which, and what are the domain areas where you can work and understand clearly what is big data, and these so many things I will tell you tomorrow, right? So I will end my lecture here. Thank you for your patience. We will meet soon again tomorrow, right? Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. Right. Thank you. Thank you, sir. Thank you.